जैन सर। अरे क्या बात है। Highly energetic sound हो रहे हो? हाँ? Great. So today Akash Institute Bikaner is privileged to have Inspector General of BSF Mr. Pushpinder Singh Rathod as our chief guest to inspire you, to guide you about the real life. So we wholeheartedly welcome sir. Welcome to Akash Institute Bikaner branch. I would like to request Ved Prakash sir to please present a short. Over to you now. So hello kids. Hello. Say hello हो गया। You are all from Bikaner? मारवाड़ी में बोला क्या ही हाल है? ठीक ठाक है? कि ज़्यादा प्रेशर तो कौन दे रहा है? टीचर गुरुजी लोग आप लोग आके पढ़ाने। Anyway, so I don't know whether they have given my introduction. मेरा introduction दिया? Yeah? Okay, I'll give you my short introduction. I am Pushpinder Singh Rathod, born in 1962 in Bikaner. Okay, I hail from a village called Bakseu, which is 30 kilometers from Nokha. So anybody from that area is my buddy and my friend and my villager and my gaon wala. But now I am settled in Bikaner. My house is there near Modern Market. You must have seen that scooter wala market. वहाँ पे मेरा एक डेरा है. पुराने जो houses को बोलते हैं डेरा. So I was born there, but I studied at many colleges, many different schools. I did my tiny tot, my nursery school from Chittor Sainik School. School name is Tiny Tot Nursery School. Then I also did I studied in Sophia College, Sophia School. In those days, till third standard, co-education था. बच्चे boys भी पढ़ते थे third class में. And then after doing third, बच्चे जाते थे BBS school, Bikaner Boys School, fourth onward. But then I again studied here and there, and I did my schooling from Kendriya Vidyalaya number 1. So even today, if you go there, I don't know. There used to be my name on a board of sports वाला जो board है उसको पुष्पिंदर सिंह नाम लिखा हो है ना बेबी कि बटालिया किसी में है ना हाँ. So I am that Pushpinder Singh. I did my schooling in 1981-82. And then I did my colleging. College मैंने किया Ajmer Government College. Ajmer Government College. Why did I go there? Because they had a very good basketball team. I being tall, one of my uncles said, you are a very tall and you play football. It is better to go and play basketball. And the right place to play basketball was Ajmer. Government College Ajmer. So they had a tradition of basketball. And there was a Guruji called Bhagwan Singh. He was a legendary basketball coach. So, वो Guruji के पास मुझे भेज दिया. So I was the 29th international basketball चेला student of Guruji. उस college से 29 international players basketball के produce हुए. And then I became a professional basketball player. Like आप देखते हो ना IPL खेलते हैं, कोई टीम के लिए खेलता है, कोई किसके लिए खेलता है ना. वैसे उस जमाने में I used to play basketball for a team called Rayons, Sriram Rayons Kota.
उनकी एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल टीम था। सो मेरे को वो सैलरी देते थे, आई यूज्ड टू प्ले फॉर देम फ्रॉम 83, 84 to 86. 5 years I played basketball for them and I played for India. I played basketball for our country and I am a national gold medalist in basketball. So till now I give you short journey of my from college, school to college and college to basketball. Then one day we realized that what after basketball? So basketball is not as popular as the NBA of America. इंडिया में तो अगर आपको खेलना है तो क्रिकेट खेलो, वरना कोई गेम नहीं खेलो। Because you want to make your career, तो आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा because the money is in cricket only. But my aim was something different because my पूरी family में मेरे जो दादा, परदादा, my father, everybody had put on uniform. So one day I decided that I will now no more play, I will not play basketball. So I quit basketball, I gave competitive exam, UPSC के थ्रू हमारे एग्जाम होते हैं, जिसके अंदर हो सकता है आप लोग में भी कोई ज्वाइन करेगा, पैरामिलिट्री में BSF, CRPF, CISF, ITBP, इनके जो ऑफिसर्स होते हैं डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट बोलते हैं, उसके अंदर टेस्ट होते हैं, उसमें मैं क्वालिफाई कर गया and I became direct officer of Border Security Force in 86. And from 86 to 2023, I did my job in Border Security Force, world की सबसे बड़ी border guarding force, and इंडिया की प्रीमियर elite border security force में मैंने 36 years सर्विस किया। इस दौरान 36 years में क्या क्या मैंने किया वो आई डोंट इवन रिमेम्बर कि क्या क्या किया। आई एम राइटिंग ए बुक। सो माय जर्नी स्टार्टेड, फर्स्ट पोस्टिंग वाज इन पंजाब, देन कश्मीर, देन बांग्लादेश बॉर्डर, देन मणिपुर, बर्मा बॉर्डर, देन अगेन कश्मीर, देन अफ्रीका। अफ्रीका में यूएन मिशन के अंदर यूनाइटेड नेशन जो फोर्सेस होती है उसके अंदर मेरे को अफ्रीका में भेजा है, मोजाम्बिक, वहाँ पे मैं रहा 1 साल, वहाँ से वापस आया राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, इंदौर, ट्रेनिंग सेंटर्स, ऐसा करके 36 इयर्स मैंने सर्विस किया। इस 36 इयर्स के अंदर आई गॉट 2 प्रेसिडेंट मेडल। अभी मेरे को इस नवंबर में राष्ट्रपति का अवार्ड मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर देंगे भुज के, अनाउंस हो गया था। आई गॉट 2 प्रेसिडेंट मेडल, आई गॉट यूएन मेडल, आई गॉट मेनी मेडल्स ऑफ फाइटिंग मिलिटेंसी इन कश्मीर, पंजाब एंड नॉर्थ ईस्ट। सो आई फॉलोड माई forefather traditions. So there is a record कि एक फैमिली में I was the 4th generation who had put on uniform. So my great grandfather served for 20 years in uniform service. When महाराजा गंगा सिंह जी का नाम सुना ना, उस वक्त वो यहाँ के वो कर्नल थे. So he fought Second World War in Africa. And then he was there, Treaty of Versailles. अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसमें Treaty of Versailles में साइन करने के लिए महाराजा गंगा सिंह गए थे. तो उनके साथ में मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कर्नल राव बहादुर सर मार थे. फिर मेरे दादाजी, उनके जो सन, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर सन जसवंत सिंह, वो अफसर बन गए पुलिस में. He retired as a IG. He had put on 40 years of service. 2040. My father again put on 38 years service. So 60 and 38 कितना हो गया? 98. I put on 36 years service कितना हो गया? 134. Not a single day service break. So it's a record that so many years one family served for the nation. और जब भी कोई गया तो
So this is the background of my service and my sports career. Again, basketball was the past. Then while in service, when I became a senior officer, I picked up golf. So you know about golf? Golf के बारे में पता है? So it's a game. So when I was posted to Shillong, Meghalaya, so my boss, he was IG, I was commandant, I was junior commandant. He said, Dato, I was told that you had played basketball for India. मैं कहा सर खेलता था कभी, अब कहाँ खेलता हूँ? अब now I'm 39-year-old man. बास्केटबॉल तो मैं इतना फिट नहीं है कि मैं वैसे इंटरनेशनल लेवल पे बास्केटबॉल खेलूँ. अब तो जॉब करता हूँ, मेरे साथ 1200 आदमी मेरे अंडर कमांड है, मैं काम कराता हूँ, बॉर्डर कार्ड करता हूँ. बोले नहीं, यू शुड प्ले golf खेलो मेरे साथ. I said, sir, it's a very slow game. But anyway, you said तो I'll play golf. But I said, मैं बास्केटबॉल को टॉप में छोड़ा था when I was 24-year-old. I was in Indian team and I left playing basketball. So if I start playing golf, I will reach to a target. I will decide कि ये मेरा target है, मैं golf वहाँ तक खेलूँगा. तो बोला वो target क्या है? I said, should be the world number 1 golfer in police. वो हंस रहा था मेरे को देख के. क्या बोला? I said, I want to be the number 1 police golfer in the world. बोला अच्छा, ठीक है. वो दूसरा हंस रहा था, ये मजाक कर रहा है. मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सीरियस बोल रहा था. And within a year, I was number 1 in the country. And 2 years, I was number 2 in the world police. And 4 years, I was the world police champion. आपने जो वीडियो देखा था, वो नेशनल एंथम बज रहा था और मेडल था, वो न्यूयॉर्क का था. So the Americans, they came to me. अरे, you play golf in India? I said, I play golf in India. I was told that India only play cricket. I said, तेरे गेम में भी तेरे को पीट के जा रहा हूँ. क्योंकि golf is an American game. Yes. American president भी खेलता है golf. All presidents used to play golf. Even president है वो भी golf खेलता है. वो एब्सोल्यूट चीटर बहुत है. तो golf में चीटिंग भी करता तो उसको पकड़ा भी गया. अब वैसे भी चीट कर रहा है वर्ल्ड के साथ. So anyway, it's a funny part of it. Anyway, so now also I play golf. So I retired. I am now 62-year-old. But last year I was in Indian team of golf, open category. In the senior category above 55. So age is just a number. अगर आप ठान ले, आप ये डिसाइड कर ले कि मैंने कुछ करना है, तो कर सकता है. आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे बैठे हो या इंस्टीट्यूट में आते हो, कोचिंग आपको दे रहे हैं लोग, आप जो डिसाइड करोगे वो कर सकते हो. मैं आपको बताऊँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते. यू डोंट नो टैलेंट व्हाट यू हैव इन योर बॉडी, इन योर माइंड. आपको खुद को पता है. यू हैव टू फाइंड आउट दैट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो काम आप करते हो उसमें आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए. सेंस ऑफ अचीवमेंट मीन्स कि जो आपने काम किया उसमें आपके टीचर आपको ये रिकॉग्नाइज करे कि क्या नाम है बच्चा, कि मृत्युंजय जो है जब क्लास में आता है तो ये डिफरेंट है. इसकी स्टाइल डिफरेंट है, इसकी वॉक करने की स्टाइल डिफरेंट है, इसकी बात करने की स्टाइल डिफरेंट है, इसकी फिजिक डिफरेंट है. ये इज वेरी गुड इन राइटिंग, ही इज वेरी गुड इन मेकिंग नोट्स. कुछ न कुछ क्वालिटी आप में है, तो दैट इज व्हाई पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू, यू आर डिफरेंट. So I have 2 sons. One is 33 and one is 30. So younger one, तो राजकुमार कॉलेज राजकोट में स्कूल जाता था. फिर वो जगह जगह मेरे साथ रहा जहाँ मेरी पोस्टिंग रही. तो बोलते पापा आई वांट टू प्ले बास्केटबॉल. भागर बास्केटबॉल खेलने लगा, मैं खेले. हो गया. पापा मुझे ना मेरे फ्रेंड्स ने मुझे, मैं खेला था, इट्स वेरी बोरिंग, मुझे पास नहीं मिला, मैं खड़ा था. बोला मैं आई विल ट्राई माय हैंड ऑन फुटबॉल. फुटबॉल ट्राई करो, ये लो फुटबॉल खेलो. सारे गेम खेलने को किया उसने, ही डिड नॉट डू वेल. तो मेरे भाई बोले क्यों पीछे पड़े हो उसको, स्पोर्ट्स में ही इज वेरी गुड इन स्टडीज. स्टडी क्या बड़ा है स्टडी. एक कंट्री के अंदर 140 करोड़ में
लाखों बच्चे हैं जो करोड़ों बच्चे हैं जो दे आर गुड इन स्टडीज, वेरी कॉमन यार। तो तुझे इंडिया के टॉप 12 प्लेयर में आना या 100 में से 100 ना मार्क्स लाना, कौन ज्यादा बड़ा है? So I told my wife, I want him to represent India. I want him to be there in the Indian team. बोले ये 97% मार्क्स ला रहा है, आप उसको जो है पढ़ाई में छुड़ा के एक्सपोर्ट को घुसा रहे हो। मैं क्या मतलब भूखा तो मरेगा नहीं। I want him to be different. चंद्रदेव नाम है। तो मैंने बोला यार तो हर जगह पे इसको शूटिंग भी नहीं कर रहा, बास्केटबॉल भी नहीं खेल पा रहा, करेगा कैसे? इंडिया टीम में कैसे आएगा? बोला आपका तो दिमाग तो उल्टा ही चलता रहता है। मैं कहती नहीं, ये खेलेगा इंडिया टीम के लिए, इंडिया कलर लगाएगा। फिर एक दिन मुझे सपना आया था कि ये जो बच्चा है इसको क्या कराया है? बोला शूटिंग का। तो मैं एक चिड़िया मारने वाली होती है, बैलून फोड़ने वाली एयरगन लेकर आया, छोटा सा था वो 10-11 साल। मैं देख तेरे लिए बहुत अच्छी चीज लेकर आया। बोला क्या लाए? देख बैलून फोड़ सकता है। हाँ पापा ये ठीक है। मैं देख कोई पास देने वाला चक्कर नहीं, कोई बॉल पास देने वाला नहीं, बॉल बास्केट, यही तेरे को टारगेट है, ठोक जा। उसने 2-3 बैलून फोड़े, उसको अच्छा लगा, ये करता है। फिर एक तो महंगी थोड़ी बंदूक ला के उसको इंटरेस्ट डेवलप, वो फिर जुनून हो गया शुरू, चालू 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 करते करते देन आई गॉट अ गन फ्रॉम जर्मनी, 2 लाख रुपए। वो इंडिया रिप्रेजेंट कर गया, तेहरान गया, जूनियर्स के अंदर मेडल जीत गया। उसके बाद मेरी सिस्टर आई मेरे पास, तो दादा आपने अपने बेटों को तो इंटरनेशनल बना दिया, मेरी 2 बेटियां हैं, अपूर्वी चंदेला और तेजस्वी चंदेला। बोले इन दोनों में से मैं भी बनाना चाहती हूँ। मैं कहती अपूर्वी को बुलाएगा, अपूर्वी इतनी सी, ये ठीक है, ये बोलती कम है और ये टारगेट पे गोली पे सही मार सकती, उसको बंदूक पकड़ा। वो 2 ओलंपिक खेल गई, कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड अभी भी कोई ब्रेक नहीं कर पाया। अपूर्वी चंदेला गूगल कर लेना, अपूर्वी चंदेला गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा जिसकी बात करो, मेरी सिस्टर की डॉटर। तो क्या कहने का मतलब है कि सब में टैलेंट है। कोई कह नहीं सकता कि अपूर्वी भी शूटिंग कर सकती थी उस टाइम जब मैंने उसको देखा था। इधर ऐसी थी अपूर्वी। अब वो जो है वो गोली मारने लगी, ये भी कर सकती है। बता रहा हूँ मैं। अब वो जिम जाती है, फिट है, तो आप कोई भी काम करना चाहो तो आप 1 सेकंड करें, हेलो हाय, क्योंकि मेरे बेसिक ट्रेनिंग में मैं शूटिंग में बेस्ट था मेरे को। तो कोई भी काम करें तो उसके लिए आपको we should motivate ourselves and उस काम को अच्छे से अच्छा करें। We should try and do best in that so that your performance is recognized and everybody say वाह। सर आज आपने जो खट्टे मीठे अनुभव बच्चों को बताए सर, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि सर उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सर आपने बहुत कुछ किया है इस देश के लिए, इस हमारे शहर के लिए। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं, BSF बीकानेर सिक्योरिटी फोर्स में भी आए और सबसे बड़े अधिकारी हैं, इनको पता ही नहीं कि आप किस पोस्ट पर हैं। सर सबसे बड़ी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि हमारे देश के प्रधान सेवक ने बोला है कि हमारे देश का बचपन अब जवानों के हाथ में है, जो युवाओं के हाथ में है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? यही हमारे युवा है, यही देश के फ्यूचर है और मेरा यहाँ आने का मकसद यही था कि मैं इनसे इंटरेक्ट करूँ और मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूँ। आज के टाइम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई तो गुरु लोग पढ़ा देंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जैसे हमारे जैसे लोग हैं बहुत है, मैं अकेला ही नहीं हूँ, वो जब तक इनसे रूबरू होके इनसे बात नहीं करेगा, इनको जो है रियल लाइफ के अंदर क्या हो रहा पता नहीं चलेगा। और हमारे थ्रू, हमारे जैसे लोगों के थ्रू हमको चाहिए कि हम हमारा एक्सपीरियंस इनको शेयर करें और उनको बताएं और ये देश के लिए आगे बढ़ सके और अच्छा कर सके।
सर एक अच्छा संदेश बहुत अच्छा दिया आपने सर, जो आपको भी पता नहीं, जोधा सर को पता नहीं। जोधा सर को मैंने आज सवेरे 12:30 बजे फ़ोन किया, मैं कि सर कितने बजे आ रहे हैं, कि एग्जैक्ट पिक 5 बजे पहुंच जाएंगे। सर 5 में 2 मिनट कम पहले यहाँ पहुंचा और 5 बजे आपके इंटरव्यू और एंट्री मैंने वीडियो की, उसमें वीडियो में टाइम भी आया है। सर ये टाइम की पंक्चुअलिटी बच्चों के बारे में बच्चों को बताइए सर कि टाइम की पंक्चुअलिटी क्या है, आज समय की क्या कीमत है। ये बहुत सही कहा कि टाइम जो है वो प्राइसलेस है। हमको चाहिए कि हम जो टाइम दिया है, मुझे पता है कि आपके लिए टाइम कितना इम्पोर्टेंट है, आपका जो टीचर्स का टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके माध्यम से यही कन्वे करना चाहूँगा कि जाना तो है ही है, टाइम पे जाना ही है, हम उसको पहले 5 मिनट बाद में 5 मिनट क्यों करें, ये मेरे को समझ में नहीं आई। आज भी नेता लोग भी जाते हैं, मैं देखता हूँ वहाँ लोग, पब्लिक बैठी है, परेशान हो रहे हैं, वो जाते हैं। दे शुड बी ऑलवेज देयर इन द टाइम। अगर कोई नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप तो अपने टाइम पर जाएं। आप जब अपने टाइम पर जाएंगे, चाहे आप नेता हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक विल अंडरस्टैंड कि भाई ये टाइम पर बंदा आता, टाइम पर आएंगे। सो ये सिस्टम जो है, वी मस्ट इंश्योर दैट ये टाइम पंक्चुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको फॉलो करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर मैं टाइम पर नहीं जाऊँगा तो आई फेल्ड इन माई ड्यूटीज़। मेरे को तो बचपन से और BSF में 36 ईयर्स में यही सीखा मैंने कि टाइम पर जाना ज़रूरी है। सर एक लास्ट लाइन कहूँगा, एक बहुत पुराना गीत है, हम लाए हैं तूफान में किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सर ये लाइन आज इन बच्चों पे बहुत अच्छी बैठती है। मैं अपने सहयोगी अजित ताकी के साथ के कुमार आहूजा, बिकानेर फ्रंटियर, बिकानेर। ओके सर, थैंक यू। कल मिलते हैं सर।